してるより愛してることを伝え Dear students, how are you? I hope that you are fine. Today I welcomes you in your channel Creative Mind in the part 3 of ratio and proportion. This is very important and useful topic for the class 10th, 9th. Yesterday we have discussed in the last previous video about the ratio. Now today we will discuss about the proportion. What do you mean by the proportion? If we take the four identities, four values A, B, C and D in such a way that A is to B is equal to C is to D. If we take the four quantities A, B, C, D such that A is to B is equal to C is to D, then this is known as the proportion, or you can say that the quantities A, B, C, D are in the proportion. In other words, we can say that the proportion is nothing but the comparison of two ratios. This symbol in the proportion is also written by the four dots. This symbol, this is the symbolical representation of proportion. Now come to the second point, continued proportion. What do you mean with the continued proportion? If A, B and C are the three physical quantities which can be represented as A is to B is equal to B is to C, then such proportion is known as continued proportion, and the middle term B is also known as the mean proportion. If we solve it, then A upon B is equal to B upon C, and on cross multiplication B square equal to AC. In this way we can say that B is the mean proportion or the mean value of the three quantities A, B, C. The A and D, first and last quantities are known as the extremes of the proportion, while B and C are known as the middle terms. Now taken one example to clear this point. Taken one example number 1. What is question? A, 2, 10 and B. A, 2, 10 and B are in continued proportion. Then find the value of A and B. अगर A, 2, 10 और B ये चार क्वांटिटीज़ हैं वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो आपको A और B की वैल्यू निकालनी है. नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, A अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन B. देख कंटिन्यूड में क्या हुआ, देखो ये राशि, ये जो वैल्यू टर्म्स हैं वो रिपीट होंगी. नाउ टेकिंग बाय फर्स्ट टू क्वांटिटीज A अपॉन 2, फर्स्ट टू रेशियोज 2 अपॉन 10, आप इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 1 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5A इक्वल टू 2, तो A इक्वल टू 2 अपॉन 5. आपको A की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन 5. अगर लास्ट के टू रेशियोज का इक्वलाइज करेंगे आप तो 2 अपॉन 10 दैट इज नथिंग 1 अपॉन 5 एंड 10 अपॉन B, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो B इज इक्वल टू 50. You get the value of B as 50. In this way, you can solve this question by the concept of continued proportion. Now taken one more example, एक और ले लीजिए आप, example number 2 एक और ले लेते हैं हम. A plus C equal to MB. If A plus C equal to MB and 1 upon B plus 1 upon D equal to M upon C, then prove that A, B, C, D are in proportion. Then prove that A, B, C and D are in proportion. A, B, C, D are in proportion. देखिए तो एक तो आपको ये दिया हुआ है फर्स्ट
कि a plus c equal to mb. You say result number 1. If a plus c equal to mb and 1 upon b 1 upon d, ये भी दिया 1 upon b plus 1 upon d is equal to m upon c. सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया b plus d upon bd equal to m upon c. Now you make the cross multiplication bc plus dc equal to m bd. अब यहाँ पर आपके पास एम बी की वैल्यू है, एम बी की वैल्यू रख लीजिए b प्लस डी सी इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम बी, a प्लस सी डी. ये कहाँ से लिखा आपने, बाई 1. आपने 1 से एम बी की वैल्यू रख ली. अब इसको सॉल्व कर दीजिए. देखो बी सी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी. ये आपका कैंसिल हो गया. अब आपके पास क्या बचा, अगर यहाँ बात करें तो क्या बच गया आपका, बी सी इक्वल टू ए डी. ना ए अपॉन बी ले जाइए और सी अपॉन डी ले जाइए. सी अपॉन डी इक्वल टू ए अपॉन बी. इन दिस वे यू कैन से दैट ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी. ए बी सी डी आर इन द प्रोपोर्शन. तो आपने इस तरह से 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपने ये सीखा. चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3. एक एग्जाम्पल से और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं. इफ A, B, C and D are in proportion, then prove that A minus B upon C minus D is equal to under root 3A square plus 8B square upon 3C square plus 8D square. देखिए यहाँ पे ए बी सी डी जो हैं, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन. देन यू हैव टू प्रूव दैट ए माइनस बी अपॉन सी माइनस डी इक्वल टू दिस. तो देखिए यहाँ पे ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन. व्हाट इट मीन्स, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी. सपोज दैट इज इक्वल टू के सम कांस्टेंट. आपने इसको सपोज कर लिया. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड सी, इसमें से ए की वैल्यू निकाल लीजिए. इससे क्या मिलेगा, ए इक्वल टू बी के एंड सी इक्वल टू डी के. दिस इज रिजल्ट नंबर 1. अब ले लीजिए आप एल एच एस. देखिए एल एच एस क्या है आपका, ए माइनस बी सी माइनस डी. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की क्या है, बी के माइनस बी. सी की क्या है, डी के माइनस डी. बी कॉमन ले लीजिए, के माइनस 1. डी कॉमन ले लीजिए, के माइनस 1. बी अपॉन डी आ गया. रिजल्ट नंबर 2. नाउ टेक आर एच एस. देखो आर एच एस क्या है आपका, अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर अपॉन 3c स्क्वायर प्लस 8d स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए. ए की क्या है, बी के, 3bk का होल स्क्वायर प्लस 8b एज इट इज अपॉन 3c का स्क्वायर dk का होल स्क्वायर प्लस 8d स्क्वायर. देखिए b स्क्वायर कॉमन, b स्क्वायर कॉमन, तो ये क्या आएगा, 3k स्क्वायर प्लस 8 अंडर रूट के अंदर. और यहाँ क्या आएगा, आप डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 3k स्क्वायर प्लस 8, ये कैंसिल हो गया. रूट से बार b अपॉन डी. दैट इज रिजल्ट नंबर 3. आप इनको कंपेयर करिए. रिजल्ट 2 and 3 आर इक्वल. इन दिस वे यू कैन से दैट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. हैंस प्रूफ. इस तरीके से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं. चलिए एक क्वेश्चन से मैं आपका और ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ. एक क्वेश्चन और ले लीजिए. देखिए क्वेश्चन है हमारा
if q is the mean proportional between, if q is the mean proportional between p and r, then prove that. तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? देन प्रूफ दैट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू रेज टू 4 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हियर क्यू इज द मीन प्रोपोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, क्यू इज द मीन प्रोपोर्शन, क्यू इज द मीन प्रोपोर्शन। किसका मीन प्रोपोर्शन है? पी एंड आर का। इट मीन्स P upon Q equal to Q upon R implies Q square equal to PR. Say this is result number 1. Now take the RHS. RHS ले लीजिए. What is RHS? Q raised to 4 1 upon P square minus 1 upon Q square and plus 1 upon R square. Now this is your RHS. अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्यू रेज टू 4 अपॉन पी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नाउ बाय रिजल्ट 1 वी नो दैट द क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर। तो आप क्यू स्क्वायर की जगह रख दे Q4 है, क्यू स्क्वायर की ये वैल्यू है, तो यानी कि पी आर का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। भाई क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी आर है, Q4 है तो उसका स्क्वायर हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू है पी आर। या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि आपको LHS में लाना है, इसको एज इट इज रखिए, इसको छड़िए मत। अब आता है आपका क्यू स्क्वायर, क्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर? पी आर अपॉन आर स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर आया माइनस क्यू स्क्वायर और यहाँ आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा प्लस, नहीं ये भी यहाँ पे सॉरी ये Q4 है ना, तो Q4 होगा मल्टीप्लाई यहाँ पे Q4 होगा तो फिर यहाँ पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर। दिस इज योर LHS। ये आपका LHS मिल गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन दिस वे यू कैन ऑल्सो प्रूफ दिस क्वेश्चन। आप इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, इंपॉर्टेंट होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें। अच्छे ज्ञान के लिए, अच्छी पकड़ के लिए, अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारी सारी वीडियोस पार्ट टू पार्ट देखें, हर एक पार्ट को देखें, तभी आपको हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसी के साथ मैं अगली वीडियो के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।